Welcome students, welcome to our channel, and this is part 2 of Ohm's law from electricity chapter of class 10th science. This is whatever we have learned up till now. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला और उनके यूनिट्स. So हमने Ohm's law पढ़ा था. Ohm's law is the relation between potential and current, and we find a quantity called resistance, and potential is proportional to current but only if temperature is constant. If temperature changes, then potential also changes. Also remember that at a particular temperature, एक particular temperature पे जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है. अगर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अगर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी तो उससे करंट की वैल्यू इस तरह से चेंज होगी कि जो रेजिस्टेंस वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा? सो जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ 4 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू पॉइंट ऑफ 120 वोल्ट. सो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू निकाल सकते हैं. V इज इक्वल टू 120 माइनस 100 एंड द चार्ज इज गिवन 4 कूलम. सो यू कैन फाइंड the value from the formula V is equal to W upon Q. So first, to solve the numericals, you have to write given and try to solve the numerical by yourself. So pause the video and try to solve the numerical by yourself, and then again resume the video and check your answers. So the value of work done is 80 joule. Next question. What is the resistance of an electric arc lamp when hot if the lamp uses 20 amp when connected to a 220 volt line? So you have given current and voltage. You can find the resistance by the relation V is equal to I into R. Again, pause the video, write given and try to solve this question by yourself. The value of resistance will be 11 ohm. Calculate the potential difference required across a conductor of resistance 5 ohm to make a current of 1.5 ampere flows through it. The value of potential will be 7.5 volt. A torch bulb when cold has 1 ohm resistance. So when a torch bulb is cold, जब वो cold है, ठंडा है, तब उसका resistance की value है 1 ohm. It draws a current of 0.3 ampere when it is glowing, not growing. It is glowing from a source of 3 volt. ठीक है. So आपको क्या करना है, आपको ये जो करंट की वैल्यू है 0.3 एम्पियर और ये जो वोल्ट की वैल्यू है वहां से रेजिस्टेंस निकालना है. रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको बताना है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस. तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम. तो देखो, जो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. जब टॉर्च बल्ब ठंडा था तब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 1 ओम. बट आफ्टर ग्लोइंग उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 ओम. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. How much current does an electric heater draw from a 220 volt line if the resistance of the heater is 50 ohm? So you can solve this question by yourself. The value of current is 4.4 ampere. Here you have given potential difference and charge. You can easily calculate from the potentials formula V is equal to W upon Q. The value of work is 24 joule. A lamp of resistance 80 ohm and a current of 0.75. You have to calculate potential. Easy question. You have given current and resistance in the question, and you have to find potential difference across the conductor. The value of potential is
0.9 volt. A bulb of resistance 400 ohm. So you have given resistance and voltage, you have to find the current. The value of current will be 0.55 ampere. An electric heater draws a current of 5 ampere. So you have given value of current and voltage. You can easily calculate resistance. The value of resistance is 44 ohm. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? Again, easy question. The value of current will be 0.18 ampere. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. तो पहले आपको दिया हुआ है कि जब उसको 60 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट किया जाता है, 60 वोल्ट दिया जाता है, तब वो 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है. सो आप इस डेटा से पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे. ओके, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 15 ओम. अब ये जो 15 ओम है ये कांस्टेंट रहेगा. अब हम लोग क्या करेंगे, अब वोल्टेज को चेंज कर देंगे. व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. तो अगर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, यहां पे हम लोग टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी टेम्परेचर पे अगर पोटेंशियल को बढ़ा दिया जाए तो करंट में क्या चेंज होगा. ठीक है, सो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ करंट. द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 8 एम्पियर. सो यहां पे आप एक और चीज देखिए, देखो जब पोटेंशियल था 60 वोल्ट तब करंट की वैल्यू कितनी थी, 4 एम्पियर. ओके, अब हम लोग पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, 60 से 120 कर दिया, तो करंट भी देखो 4 से कितना हो गया. द वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी देखो, when the value of potential is 60 increased from 60 to 120, the current also doubled from 4 to 8 ampere. So this again proves Ohm's law that potential is directly proportional to current. These questions we have already solved, and you know how to find the value of resistance from VI graph. So you have to take, आप कोई भी एक पेयर ले लीजिए वोल्टेज करंट का, और वोल्टेज में से करंट को डिवाइड कर दीजिए. तो 8 में से अगर 4 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा 2. 6 में से 3 को डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, और 4 में से 2 को डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा. ठीक है, ये जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है. सो जो पहला ग्राफ है वो करेक्ट है, क्योंकि देखो यहां पे जब पोटेंशियल जीरो है, यहां पर पोटेंशियल जीरो है, फिर भी यहां पे करंट की कुछ वैल्यू है. तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए हमको करंट मिल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए पहला ग्राफ जो है वो करेक्ट है और दूसरा ग्राफ इनकरेक्ट. अगेन you have to find which resistance is more than the other. okay, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, हमने पोटेंशियल एक्सिस पे एक पॉइंट लिया था, ये वाला पॉइंट देखो. ठीक है, यहां पे करंट का वैल्यू है I1, यहां पे करंट की वैल्यू है I2. ओके, द वैल्यू ऑफ I2 इज ग्रेटर देन I1. सो अगर करंट ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, कम. सो अपोजिट रिलेशन होगा यहां पे, R2 विल बी स्मॉलर देन R1. ठीक है, R2 छोटा और R1 बड़ा. नेक्स्ट, यहां पे हमने एक्सिस चेंज कर दिया था, वोल्टेज को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले आए थे और करंट को वाई एक्सिस पे. सो फिर से वही करेंगे, आप वोल्टेज एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. सपोज दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज आवर करंट, दिस इज I2 एंड दिस इज I1. सॉरी,
this is the value of I2 and this is the value of I1. It is clear that I1 is greater than I2, so R2 will be greater than R1. Okay. So thank you for watching this video. If you like the content, do subscribe and share among your friends. Thank you.